Morning. Very good morning to all of you. Is it visible the board, all of you? Good morning. Yes, ma'am. Okay. Now our syllabus is completed. I have told we will discuss first introduction to algebra. Okay. Chapter 6. मैम ये जो मैम अलजेब्रा भी बोर्ड पे करवाएंगी मैम, वो भी CW कॉपी में ही लिखना है। Yes, CW कॉपी में ही लिखना है आपको। ओके मैम। Okay. You know what is algebra? See. मैम फेयर कॉपी में लिख सकते हैं ना? What you are asking? मैम फेयर कॉपी पे लिख सकते हैं ना? हाँ, सेम कॉपी पे आप लिखना है। You have to write down in CW copy. मैम हाँ मैम ओके मैम, ये रिवीजन है ना? हाँ, ये रिवीजन वर्क है। मैम कैन आई सी व्हाट इज अलजेब्रा? हाँ, बस उधर देखो, भूख से नहीं tell me what is algebra? Everybody सुनो, mute yourself. Ma'am, a type of mathematics in which letters and symbols are used to represent numbers. Very good. See, in algebra you are using two things. One is variable, other is constants. Okay, constants are numbers like this. 1, 2, 3. These are called constants. But literals और variables यूज करते हैं हम लोग A, B up to Z. Okay, these are called variables. Don't write now. ये सब अभी लिखना नहीं है. Just I am अभी something telling about the algebra. सुनो, Indian mathematician Aryabhat is said to have introduced algebra in India. Okay, ये fill in the blanks में क्वेश्चन में आ सकता है. Who is said to have introduced algebra in India? Aryabhat. Okay. हाँ, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट और आर्यभट्टा जो भी बोलना है बोलो, but you have to remember. Okay, Aryabhatta is said to have introduced algebra in India. Okay, and who is known as father of algebra? Francio Vitte. Okay, see, do you know me? देखो, you see, I have shown you the book. इसमें लिखा हुआ है, देखो, the first person to develop algebraic method of problem solving was the French mathematician Francois Vitte. He is also called the father of algebra. Okay, who is known as father of algebra? You have to remember Francois Vitte, or you have to remember the spelling also. Spelling आपको remember करना है. Okay, और who has introduced algebra in India? Aryabhatta. Okay. हाँ. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट मतलब जो नंबर्स हम लोग ले रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 0, ये सब जो नंबर्स है, we are used for counting. Okay, natural numbers or counting numbers are called constants. और मैम वेरिएबल मतलब द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स में जो लेटर्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि A, B, C, D अप टू Z तक, उस सारे लेटर्स को हम लिटरल्स कहते हैं. अदरवाइज इसको भी हम वेरिएबल्स कहते हैं. ऑल लिटरल्स आर, सुनो एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ. ऑल लिटरल्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स. ओके, लिटरल्स मीन्स लेटर्स, or we can say alphabets. Anshu, understood now? समझ में आया? यस मैम, समझ गए मैम. हाँ, अभी हम मैम हमको ये सब लिखना है, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स. नो, इसको नहीं लिखना है.
ओके और ये कॉन्स्टेंट्स का डेफिनेशन अगर कोई पूछे आप बोलेंगे और क्वांटिटी व्हिच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। अगर हम 1 बोलेंगे तो कैन यू चेंज इट्स वैल्यू? नो, you can say only 1. That's why it's called constant. कांस्टेंट का कभी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता है। अगर हम value of x, so it is called variable. वेरिएबल सुनो, वैल्यू ऑफ x हम x इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं, 2, 9, 10 कोई भी नंबर हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से हम ले सकते हैं। दैट्स व्हाई x इज कॉल्ड वेरिएबल। ओके Variable. यस ma'am. सो मैम हम लोग कांस्टेंट में कोई भी नंबर ले सकते हैं। हाँ मैम हम लोग कांस्टेंट में मैम कोई भी नंबर ले सकते कोई भी हैं। नंबर, हाँ कोई भी नंबर हम बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट्स में, कोई भी नंबर। All counting numbers are constants. Okay? A quantity, listen, mute yourself. If you have any doubt, you can unmute and ask me. Now you all mute yourself. A quantity which does not change its value is called constant. A quantity which changes its value is called variable. Now everybody clear about constants and variable? Constants are the numbers, or we can say counting numbers, and variables are the letters or literals which we are using as alphabets. We can say as alphabets. These are called variables. Okay? Now go to the worksheet 1. अब वर्कशीट 1 लिखो। कितना है? हाँ मैम विच पेज नंबर? वर्कशीट 1 शुरू करते हैं। वर्कशीट इसको लिखना है? नहीं बेटा, ऑलरेडी यू हैव रिटन। ओके, नो नीड टू राइट डाउन, ओनली द क्वेश्चंस आई विल सॉल्व, यू राइट डाउन। ये तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ऑलरेडी यू हैव रिटन अलजेब्रा, ऑलरेडी यू हैव टॉट। राइट द नंबर व्हिच इज 5 मोर देन x से हम क्या नंबर लिखेंगे? राइट द नंबर व्हिच इज 5 मोर देन x। वर्कशीट 1 ओके, क्वेश्चन नंबर 1 अब हम एक हम बनाएंगे, एक हम आप लोग से पूछेंगे। ओके, 5 मोर देन x, जो x से 5 ज्यादा है तो हम इसको क्या लिखेंगे? x प्लस 5 प्लस x, जो लिखो x प्लस 5 लिखो। हाँ x plus 5. x plus 5 you can write, or you can write 5 plus x, both are correct. Okay? Okay ma'am. हाँ, who is asking something? See, मैम पूछ रहे थे मैम कि मैम x plus 5 और मैम 5 plus x मैम दोनों मैम सही होगा? दोनों सेम ही है। ओके, प्लस में आप a प्लस b और b प्लस a बोथ आर सेम। ये दोनों का वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। देखो मैम वर्कशीट 1 कॉपी में बनाना है ना? हाँ, ये अभी कॉपी में बनाओ। इसको ऊपर में लिख दो रिवीजन वर्क, चैप्टर हो गया अलजेब्रा वर्कशीट 1। हम एक वर्कशीट, दो वर्कशीट एक दिन में हम लोग रिवाइज कर लेंगे। अब देखो 3 लेस देन y, 3 लेस देन मैम y minus 3. y minus 3, वेरी गुड। 3 minus y नहीं, 3 minus y नहीं। वर्कशीट 1 CW कॉपी में करना है। यस यू हैव टू डू इन CW कॉपी, और ऊपर में हेडिंग लिखो रिवीजन वर्क। मैम इसको हम लोग खुद ही से बनाए क्या मैम 2 times z देख, मैम 2z। एक मिनट। हाँ, 3 लेस देन, सुनो केयरफुली, 3 लेस देन y दिया है, मतलब 3 कम है किससे? y से। आप 3 से y कम नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। ओके,
3 लेस देन वाई, वहां पे लिखा है 3 लेस, कितना लेस होगा? शेयर कॉपी में करेंगे। यस यस, हाउ मेनी टाइम्स आई विल टेल, यू हैव टू राइट डाउन इन CW कॉपी। आई एम राइटिंग हियर CW कॉपी में लिखो अभी, ओके, नो नीड टू आस्क। मैम इसको अभी खुद ही से बनाए। हाँ मैम इसको खुद ही से बनाया अभी। हाँ, बनाते जाओ। 3 लेस देन वाई, समवन इज टेलिंग 3 minus y, 3 minus y is incorrect. Listen me first. 3 minus y is incorrect. You have to understand the question properly. 3 less than y मतलब है 3 कम है किससे? y से 3 less है, इसलिए you have to write down y minus 3. Then 2 times z. 2 times means 2 into z. 2z. 2 into z. Yes. 2 into z. Okay. Roman 2z. Then 1/3 of x, 1/3 of x हो गया 1/3 x, okay? 1/3 x. X, yes. 1/3 means 1/3. Of means multiplication. You have to know of means multiplication. 1/3 x. Next, E4 Ma'am, more A than plus sum of B. A and B. Ma'am, 4 plus more 4. than sum of A plus B. Plus 4. Plus 4. A plus 4. A plus B plus 4. Yes. Bracket. Bracket. Ma'am, A plus B plus 4. ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है प्लस में, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तभी आपको ब्रैकेट की जरूरत है, ओके? 4 मोर देन किससे? सम ऑफ ए प्लस बी, पहले तो सम ऑफ ए प्लस बी आपका ए प्लस बी हो गया, फिर 4 मोर दिया है, 4 मोर मीन्स 4 प्लस, ओके? 4 प्लस, अदरवाइज ए प्लस बी प्लस 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम मुझे 4 मोर देन सम ऑफ ए एंड बी नहीं समझ में आया। 4 मोर मीन्स व्हाट? मोर मीन्स भी ज्यादा है कि नहीं? ज्यादा मीन्स यू हैव टू ऐड। यस मैम। हाँ, और सम का मतलब भी प्लस है, मोर का मतलब भी प्लस है, ओके? सम मीन्स ए प्लस, सम ऑफ ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी, आप लिखिएगा सम ऑफ ए एंड बी ए प्लस बी। मोर देन 4, फिर मोर हो गया प्लस 4, मोर का मतलब प्लस है, सम का मतलब भी प्लस है। मैम क्वेश्चन में 2 उत्तर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अंशु, मैम x प्लस y। आपको y प्लस x। अंशु, मैम आपको समझ में आ रहा है? y प्लस x। मैम x प्लस y। मैम x प्लस y। Shall I rub this one? ये हम मिटाएं? Yes मैम। Okay. Yes मैम। No मैम। Yes मैम। Who is saying no? Sunny. Yes. मैम एक का मैं बताऊं? Question number 2. मैम x हाँ, प्लस y। x प्लस y। हाँ, मैम, x एक का added to plus y. y। So easy. Yes. अंशु, बताओ। x प्लस y होगा। अंशु, you मैम tell x प्लस me. y। y प्लस x। मैम x प्लस y। Yes. X plus y. x प्लस y। X plus y भी लिखो, y plus x भी लिखो, both are correct. या Then y B. प्लस 2 मैम m2 होगा। मैम कुछ m प्लस 2 होगा। Yes, yes. आप अपने आप को म्यूट करो. One by one, I will tell your names. You will give the answer. बी का आंसर होगा आप अपने आप को म्यूट करो. m प्लस 2। There is so much Yes, ma'am. noise. म्यूट करो. कितना सारा आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट करो अपने आप को. हाँ, see, m increased by 2, increase also plus है. देखो, added होने पर प्लस, सम होने पर प्लस, इंक्रीज होने पर प्लस. कितने जगह पर आपको प्लस लग रहा है? m increased by 2 and plus 2.
x plus y plus z. हाँ, नेक्स्ट हो गया सम ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, then D, Then 3 times P added to 3 times Q. This is one important question. Okay. 3q plus 2p. 2 times P means 2P added. Added means plus 3 times Q. 3Q. 1 by 3 a plus b. Yes, ma'am. अब हम सबको नोट कर रहे हैं. Ma'am, answer of E is 1 by 3 by 1 by 3. There is so much noise. Okay. Whom I will ask, he will give the answer. Okay. See. What the question is given? 2 times P means 2P. Added means plus 2. 3 times Q. 3 times Q means 3Q. Okay. Everybody is shouting. Now clearly those who has not known this type of algebra, you should understand. Then 1/3 the sum of A and B. You know sum of A and B is equal to A plus B. उसके बाद पहले दिया है 1/3, इसी के 1/3 1 by 3 into the sum of A and B. 1 by 3 इसका मतलब है 1/3 of sum of A plus B. Then F. F में 4 less than x. 4 less than x means x minus 4. Okay. Then G. G has given x less than 4. x less than 4 means 4 minus x. दोनों में अंतर देखो. पहला क्वेश्चन में दिया है 4 लेस किससे? x से. 4 लेस है x से, इसका मतलब है x minus 4. देन दिया है x लेस है किससे? 4 से. दोनों में अंतर आप देख लो, दोनों में डिफरेंस क्या है. ओके. नाउ h हो गया p टेकन अवे फ्रॉम ट्वाइस q. टेकन अवे मीन्स उससे निकाल लेना. ओके. इसका मतलब है माइनस फ्रॉम ट्वाइस q मीन्स 2q minus p. टेकन अवे मीन्स माइनस. ओके. मतलब वहां से निकाल लेना है. Who is raising their hand? Hare Krishna. Unmute. Then Ananya, you also unmute. Vaishnavi, unmute. Satyak, you unmute yourself. What question you have? Okay. Aditya Raj. हाँ. Hare Krishna. Why you are raising your hand? मैम मेरा 2 नंबर बन गया, 3 नंबर बना लूं? Yes. वैष्णवी, वो सारे लोग हाथ उठा दिए हैं, मतलब सबको हम अनम्यूट कर लेंगे फिर जैसे को तैसे. हैं? 2 का D नहीं समझ रहा. 2 का D. 2 का D. यस मैम. D में दिया है देखो 2 times P. 2 times means 2 गुना 2P. ओके. Added means plus 2. 3 times Q. 3 times Q means 3Q. 2P plus 3Q. Okay. Okay. Or anybody? Any doubts? Sakshi, unmute and ask Kashyap. मैम मुझे मैम इसका H समझ में नहीं आया कि टेकन अवे फ्रॉम ट्वाइस. मैम एक्सक्यूज मी. H. मैम हाफ द सम ऑफ P एंड Q. हाँ. H में दिया है P टेकन अवे. एक मिनट सुनो पहले इसको. H दिया है P टेकन अवे फ्रॉम ट्वाइस Q. ट्वाइस Q मीन्स व्हाट? 2Q. ट्वाइस Q मीन्स व्हाट? 2Q. एंड P टेकन अवे मतलब P वहां से निकाल लेना है. निकाल लेना है मतलब माइनस कर देना है. उसमें से P को निकाल दीजिएगा. ओके. 2Q माइनस P. ओके. टेकन अवे में याद रख. सुनो टेकन अवे याद रखना माइनस.
Okay, ma'am. ओके देन आप 10 हाँ और मैम any जी doubt? का एक और बार बता दीजिए ना। Then I equal to 3 times x. 3 times x means 3x. Then j 1/5 of y added to x. 1/5 of y means 1/5y. Okay. Added to x plus x. Then k. k में दिया है 5 times the sum of x and y. 5 times इसको 5 times means ब्रैकेट में इसको रखिएगा 5 गुना किसका 5 गुना सम ऑफ x प्लस वाई x प्लस वाई 5 यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो ओके ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन आपको देने से भी चलेगा नहीं देने से भी चलेगा के तक किसको समझ में नहीं आया पूछो इफ एनी डाउट टू एनीबडी अप टू के यस मैम कीमत समझा दीजिए। के यस मैम। देखो सम ऑफ x प्लस वाई हैज गिवन ओके सम ऑफ x प्लस वाई आपको पता है ना x प्लस वाई यस मैम। और 5 टाइम्स दिया है किसका 5 टाइम्स सम ऑफ x एंड y का 5 गुना कर देना है 5 गुना तो 5 ऑफ x प्लस वाई 5 इंटू एक्स प्लस वाई आप यहाँ पे आपको इंटू भी नहीं लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स प्लस वाई ओके एक्स प्लस वाई का 5 गुना अंडरस्टूड यस मैम। shall I rub this page completed यस मैम कंप्लीटेड। ओके फ्रॉम दिस पे देखो इसमें से तो एक दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है ओके यू हैव टू प्रैक्टिस मोर जो समझ में नहीं आ रहा है अभी रिवीजन चल रहा है बढ़िया से मन लगाकर करो जो डाउट है उसको पूछो कहाँ तक गए हम लोग के उसके बाद एल एल में दिया है आपको a डिवाइडेड बाई 6 a डिवाइडेड बाई 6 देन m इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्वोशिएंट ऑफ x बाय 5 क्वोशिएंट ऑफ हाँ क्या प्रॉब्लम है हेलो नो प्रॉब्लम मैम। कोई प्रॉब्लम है नो मैम। 2 का फिर हम m क्वोशिएंट ऑफ x बाई 5 देन n हो गया आपका हाफ द सम ऑफ p एंड q 1/2 मीन्स 1/2 ऑफ मैम p प्लस q डिवाइडेड p प्लस q हाफ नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं इस तरह से भी कोई भी तरह से मैम हाँ सम का मतलब क्या हो मेरा देखिए ना गलत है। हाफ मीन्स 1/2 क्या लिखे हैं आप दिखाओ बढ़िया मैम बट मैम बाय में नहीं लिखो। हाँ ये भी p प्लस क्यू को बेटा ब्रैकेट में लिखो अगर आप लिखे हैं इस तरह से लिखे हैं p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इसको ब्रैकेट में लिखो ओके ओके मैम। हाँ और सब ठीक है उसको ब्रैकेट में लिखो मैम हाफ द सम का मतलब 1/2। हाफ मतलब 1/2 ओके सम मीन्स द एडिशन सम ऑफ p एंड q लिखा हुआ है हाफ अलग लिखा है Yes. देखो हाफ द सम ऑफ p प्लस q का आधा लेना है p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 ओके यस मैम। नाउ फिर देखो शुरू अनम्यूट योरसेल्फ स्टार्टिंग मैम वन क्वेश्चन समझा दीजिए वन क्वेश्चन समझा दीजिए कौन लिखा है ये क्वेश्चन समझा दीजिए कौन सा क्वेश्चन हु इज राइटिंग इन चैट बॉक्स अंशु राज
अनम्यूट करो। कृतिका पांडे, नित्या, कुशाल राज। हाँ, क्वेश्चन में प्रॉब्लम था। किसमें? मैम क्वेश्चन नंबर 3 नो मैम जे में। टू का यस मैम। ओके ओके। जे में दिया है आपको 1/5 of y added to x. 1/5 of y means 1/5 y added to x means plus x. Okay, 1/5 means 1/5 y plus x. और एनी प्रॉब्लम? टू का के नहीं आया। हाँ मैम टू का के 5 times the sum of x and y। 2 का के, अच्छा के देखो 5 times the sum of x plus x and y. sum of x and y x plus y 5 times means 5 गुना इसका है। किसका 5 गुना? x plus y का 5 गुना। 5 times means किसका 5 गुना? 5 times means आपको पता है 5 गुना। किसका 5 गुना? x plus y का। ओके, और एनी डाउट? नो मैम। अब हो गया सबका प्रॉब्लम सॉल्व? यस मैम। 2 का के मैम। हाँ हो गया। 2 का के जो पूछ रहे थे सबको समझ में आ गया ना? यस मैम। अंशु, अधिराज, Yes. अधिराज, Yes, ma'am. हैव यू एनी डाउट? आदिति कुमारी, यस मैम। हाँ क्या मैम प्रॉब्लम मुझे ये है? पूछ मैम मैम समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा? मैम क्वेश्चन नंबर 2 है। एम यस मैम। एम हो गया क्वोशेंट ऑफ एक्स बाय वाई। क्वोशेंट मीन्स आपको पता है ना, डिवीजन करने के बाद जो आता Yes, है ma'am. उसको क्वोशेंट बोलते हैं। जैसे कि 5 सपोज 8 हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 4 जार 8, ये है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? 8 Yes, को ma'am. डिविडेंड। मैम और ये 2 Yes, क्या ma'am. बोलते हैं? ये डिविडेंड डिवाइजर। डिवाइजर। और इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। कोसेंट। वही दिया है, कोसेंट ऑफ x बाई वाई मीन्स x से 5 को आप डिवाइड कीजिएगा, जो कोसेंट आएगा। इसका मतलब है x डिवाइडेड बाई 5 इस तरह से लिखे, अदरवाइज आप लिखे x बाई 5 बस। यस मैम। ओके थैंक यू मैम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 completed 1 and 2. Everybody clear? In every question clear? Now you do question number 3. What the question had said? Write the following expression in words. देखो अभी हमारा words में दिया था या फिर sentence में दिया था, हम इसको किस में लिखे? हम इसको एल्जेब्रा फॉर्म में लिखे, मतलब लिटरल्स और नंबर्स या फिर लिटरल्स और वेरिएबल्स और कांस्टेंट फॉर्म में लिखे थे, एल्जेब्रा में लिखे थे। अब एल्जेब्रा का फॉर्म दिया हुआ है, आप इसको स्टेटमेंट लिखेंगे। x plus 5 क्या लिखेंगे? अंशु यू टेल मी। मैम x more than 5। x added to 5। मैम x more than 5। बहुत तरह के हो सकता है। देखो x plus 5 दिया है, देखो so many मैम the sentence। sum of x 5। sum of मैम x added to 5। x लिखेंगे। एक लिख सकते हैं हम sum of x and 5, दूसरा लिख सकते हैं x added to 5, ओके। तीसरा लिख सकते हैं x increased 5 increased by x, या फिर x increased by 5, या फिर 5 increased
बाय एक्स, मतलब x प्लस 5। ओके, देखो किस तरह से मैम ये सब आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। हाँ मैम एग्जाम में ये सब लिख सकते हैं। नहीं, एक तो लिखना है ना आपको, 3 नहीं लिखना है। हम एक चीज आपको बता रहे हैं, 3 तो हम सेंटेंस निकाल सकते हैं, आप कोई भी एक लिखना है। ओके, यस मैम। अधिराज, अधिराज को क्या प्रॉब्लम है? हरे कृष्णा। मैम 3 का मतलब ए में मैं क्वेश्चन लिख सकते हैं 5 मोर देन x। 5 मोर देन एक्स, वेरी गुड। और भी एक 5 मोर देन एक्स। हाँ, देखो कितना सारा स्टेटमेंट हम लिख पा रहे हैं, सो मेनी स्टेटमेंट्स। ओके, नित्या। मैम आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 पे मैम लिखा है x एडेड 5, x होगा कि x एडेड 2 5 होगा? यस मैम। हाँ, x एडेड 2 5, x एडेड 5, हाँ 2 5 लिखो, x एडेड 2 मैम ये 5। भी हो सकता है मैम x इंक्रीज्ड बाय 5। हाँ, x मैंने लिखी हूँ, 5 इंक्रीज्ड बाय x, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं x इंक्रीज्ड बाय 5, ये भी लिख सकते हैं। ओके, देखो कितना सारा स्टेटमेंट्स वी आर गेटिंग। आप कोई भी इसमें एक तो आपको स्टेटमेंट लिखना है इन योर एग्जामिनेशन। ओके, एवरीबॉडी क्लियर नाउ? बहुत सारा ऑप्शन है। बहुत सारा स्टेटमेंट आ सकता है। अंशुराज। मैम बी का हाँ, मैम बी का मैं बोलूं? मैम बी का दिस वन। 3 अभी डिग्री मिटाओ इसको, 5। 1 मिनट पहले इसको मिटाने दो। हो गया ना? यस Yes, sir. Yes, ma'am. 3 degrees. Yes, ma'am. Less than 5. Sorry, y. हाँ, b में y माइनस 3। अब एक Ma'am, करके 3 बताओ। decreased by y. हाँ, Ma'am, 3 less than y. 3 decreased by y. 3 डिक्रीज by y, Less than y. Less than y. 1 by 1, 3 decreased by y, then 2, Ma'am, 3 less than y. Ma'am, 3 subtracted from y. 3 less than y, Ma'am, 3 subtracted from y. Subtracted from 3 y. subtracted From y. from y, very good। और 3 taken away from y, ये भी लिख सकते हैं, 3 taken away। taken away means subtraction, taken away from y। Taken away from y. हाँ, देखो 4 statements we are getting। okay, मैम 3 मोर देन वाई। मोर देन कैसे होगा? ये माइनस दिया है ना बेटा, लेस होगा ना, 3 लेस देन y, मोर नहीं होगा। जब प्लस देता है तभी हम लोग मोर लिख सकते हैं। हो गया कंप्लीट? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये तो हो सी गया। का मैं बताऊं? मैम मैं सी का बताऊं? एक मिनट, सी का बताऊं? देखो कितना बढ़िया से आप लोग को सारा आंसर आ जा रहा है। 2/3x, हाँ 1/1, टेल मी 2/3x। मैम 2/3 of x. 2/3 of x. 2/3 मैम 2 हाफ एक्स। मैम 2/3 of x. 2/3 of x. ओके, वेरी गुड। 2/3 मैम of 2/3 x, multiplied by x. मैम 2/3 multiplied by x. ये हो सकता है, देखो 1/3 of 2 times x, 1/3 of 2 times of x, 2 times. 2 times of x 2x हो गया, फिर 1/3 of 2 times of x। ओके,
नहीं, मैं लिखेंगे मैम 2. मैम 2/3 multiplied by x. Yes, very good. 2/3 multiplied by x. ओके, देखो इस तरह से आपको स्टेटमेंट्स लिखनी है. Divided by x. हाँ, मैम d का मैं बोलूं मैम d का. अंशु, why you are raising your hand? अदिति कुमारी, मैम सुधांशु, 2/3 divided by x. नो मैम ये नहीं हो सकता. मैम ये सारा लिखेंगे हम लोग कॉपी नहीं. इसको लिखना है. मैम हाँ, ये सारा को अभी लिख लो, बट इन योर एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट डाउन ओनली वन. ओके, अभी के लिए लिख लो, आपको एग्जाम से पहले जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको हेल्प हो जाएगा. यू राइट डाउन. ओके मैम. Shall I write this one? Yes ma'am. Yes ma'am. Just I am telling ma'am D one. नेक्स्ट हो गया D. 4z. मैम हाँ, मैम 4 of x z. 4 times 4 times z. 4 times of z. नेक्स्ट हो गया z 4 multiplied by z. 4 multiplied by z. Multiplied by 4 times. multiplied 4 times z. Ma'am 4 times z. 4 times of z. 4 multiplied by z. Multiplied by z. Mic on. और z is also multiplied by 4 times. 4. Multiplied by z. 4. 4 multiplied by z is multiplied by 4. ओके, इस तरह से आपको लिखना है. राइट डाउन. अभी 3 लिख लो. Yes, ma'am. X, Y, Y. Quotient of X by Y. एक मिनट हो गया. Multiplied by. The quotient of X by Y. Ma'am, Y divided 2x by. Ma'am, Y divided 2x. क्वेश्चन ऑफ x by y. पहले लिखो क्वेश्चन ऑफ x X by Y. by y. यस. देन b में लिखेंगे इसका x y डिवाइडेड divided by. हाँ, x डिवाइडेड बाय y. Y. ओके. Yes, ma'am. हाँ, ये 2 लिख लो. मैम लिख लिए. वेरी गुड.